امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنا 20 نکاتی جو ایجنڈا ہے وہ پیش کیا ہے اور معاہدہ پیش کیا ہے جس میں فوری جنگ بندی ہے. اچھا اس میں فوری جنگ بندی کی بات کی گئی ہے, فلسطین کے لوگوں کو غزہ کی بات یہ کی گئی ہے کہ کسی کو نکالا نہیں جائے گا وہاں سے, لیکن جو اتھارٹیز وہاں پر آ کر کام کریں گی, اور اس کے ایک پوائنٹ ایسا بھی جس کو آپ ٹونی بلیئر کی بات کری تھی, ان اتھارٹیز میں اے پولیٹیکل پیلسٹینین اتھارٹی. اب وہ اے پولیٹیکل کیوں؟ جب آپ کسی ملک کو اس کا کنٹرول, کسی ریاست کو اس کا کنٹرول دے رہے ہیں تو اس میں پولیٹیکل جو سائیڈ ہے اس کی, اس کو تو آن بورڈ رکھیں گے نا, وہی تو وہاں پر کریں, وہاں کے لوگ ہی ہوں گے نا, وہی وہاں کے لوگ اس میں ہوں گے, آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں, سپروائز کر سکتے ہیں, بٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا تو کوئی بندہ نہیں ہوگا, ہم ہی سب کچھ کریں گے. تو یہ بھی ایک طرح سے مطلب وہی بات ہے نا, قبضہ ہی ہوا. بالکل. تو یہ ایک معاہدہ کس حد تک قابل عمل ہوگا اور اس کی کون سے پوائنٹس ہیں جن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, جن میں دوبارہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور اب نیتن یاہو کا لیٹسٹ جو اس کا اعلان ہے اور جو انہوں نے بولا ہے کہ کس میں پوسٹ کے ذریعے بولا ہے کوئی ٹیلی گرام کہ جی ہم نے کب کہا, ہم تو کبھی نہیں مانیں گے ان کو ایز اے اسٹیٹ. واٹ از گوئنگ آن؟ ہیلو. تو ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب نے جوائن کر لیا. صابر صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, صبح خیر جناب. جی امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. آپ صبح بالکل ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. صابر صاحب مجھے بتائیں, 20 نکاتی معاہدہ آ گیا ہے اور سب اس کو تقریباً یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک مائل سٹون ہے, بڑی پیش رفت ہے, غزہ کے مسئلے کا حل ہے, لیکن ہم جب اسے پڑھ رہے ہیں, نادیہ, میں اور دیگر لوگ جو پڑھ رہے ہیں, اس میں بہت زیادہ, اور ہماری سمجھ ہے بھی کم. عوام لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں, لیڈرز کچھ اس کو پسند کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ کی شروع سے لے کر اب تک پوری گفتگو سنی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نکات آپ کے ذہن کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں, میرا خیال ہے کہ آپ کی سمجھ بوجھ, ہم عوام کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان حکمرانوں سے اب زیادہ ہے, کیونکہ یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے, یہ ایک خیانت ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ کی جا رہی ہے. مثال کے طور پر یہ جو 20 نکاتی جو معاہدہ پیش کیا گیا ہے, اس کو جنگ بندی کا نام دیا جا رہا ہے, حالانکہ وہاں جنگ کیا, وہاں جینوسائیڈ ہو رہی ہے. بالکل جنگ تو ہے ہی, جو ہے وہ لوگوں کی ایک انسانی وہ نسل کشی کی گئی ہے. اب یہ جو 20 نکاتی معاہدہ ہے, یہ انسانی نسل کشی کے بعد فلسطینیوں کی سیاسی نسل کشی کی جا رہی ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ اس کے اندر جو عرب حکومتیں ہیں, جو مسلمان حکومتیں ہیں, وہ اس کی حمایت کر رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ معاہدہ بہت اچھا ہے. یہ سب امریکی اثالیسی کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے, دیکھیے اگر ٹونی بلیئر جیسے کسی آدمی کو آ کر وہ غزہ کا کنٹرول دینے کی بات کی جا رہی ہے, تو کیوں نہیں پھر حماس کو برطانیہ کا کنٹرول دے دیا جائے؟ بالکل. یہ پھر یہ جائز چیزیں ہیں نا. تو یہ پھر یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ ہو آر یو بھائی, آپ کون ہیں کہ آج فلسطین کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ اس کو ہم حکومت دے دیں گے, ہم اس کو دے دیں گے. حماس is a legitimate political power of Palestine. They are not only resistance organization. ہاں تو وہ ٹیکنوکریٹس اور یہ اے پولیٹیکل اتھارٹیز کون سی ہیں وہ؟ جی بالکل. انہوں نے جناب وہاں پہ حکومت کی ہے, وہاں پہ ان کے ساتھ لاکھوں عواموں نے ان کو ووٹ کیے ہیں, ان کا وزیر اعظم ہے, ان کا سب کچھ رہا ہے. آپ نے ان کو قتل کیا ہے جا کر, آپ نے ان کے اوپر جو ہے نا وہ جنگ مسلط کی ہے. پھر وہ جو فلسطینی اتھارٹی وہاں پہ بیٹھی ہے, وہ فلسطینی اتھارٹی تو بیچاری بغیر کسی حکومت وہ اختیارات کے بیٹھی ہوئی ہے. میں نے لاسٹ آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ریاست تو ریاست بنتی ہے عوام, ٹیریٹری, حکومت اور سوورینٹی کے ساتھ. آپ کہتے ہیں کہ آزاد اور خود مختار ریاست, یہ کون سی خود مختاری ہے جہاں پر نہ ان کی اپنی فوج ہے, نہ ان کا اپنا اختیار ہے, نہ ان کو کرنسی چھاپنے کا اختیار ہے, نہ ان کو اور فیصلے لینے کا اختیار ہے. تو یہ تو خود مختاری نہیں ہے. اب جو خود مختار ریاستیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں امریکی معاہدے کو, یہ تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ کس قسم کی خود مختاری کو سپورٹ کرتی ہیں. میں تو شہباز شریف صاحب کے بیان پر بہت حیرت زدہ ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے یہ امریکی جو ہے نا پلان کو انہوں نے کیسے یہ ویلکم کیا ہے. سب سے پہلے بڑھ کر یہ پاکستانی عوام کے امنگوں کے برخلاف ہے. میری ان سے اپیل ہے, ان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس معاہدے کو فی الفور اپنے الفاظ کو واپس لیں اور پاکستانی عوام کے امنگوں کی ترجمانی کریں. اچھا صابر صاحب ایک چیز مجھے اور بتائیے گا. دیکھیں ہم یہ بات کرتے رہے تھے کہ بھئی غزہ سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, انخلا ہو رہا ہے زبردستی جبری طور پر, اور وہاں آباد کاری کی جا رہی ہے, لیکن ایک اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ no one will be forced to leave Gaza and those who wish to leave will be free to do so and free to return. تو یہ مجھے بتائیں, یہ ایک دو چیزیں تو ٹھیک, اس کو کیسے آپ انالائز کر رہے ہیں؟ دیکھیے بھائی بات یہ ہے کہ کوئی بھی خوشی سے وہاں سے نہیں نکلنا چاہ رہا ہے. اگر میرے گھر پہ آپ آگے بمباری کریں گے, میں کیا کروں گا؟ اپنے بچوں کو بچاؤں گا نا, یہ تو نہیں کروں گا بموں کے آگے وہ پیش کر دوں گا. تو آپ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بمباری بند کریں, آپ یہ دہشت گردی بند کریں, آپ یہ اسرائیلی فورسز جو آکوپائڈ فورسز ہیں, ناٹ اے ڈیفینس فورسز, دے آر آکوپائڈ, دے آر آکوپیشن فورسز, ان کو وہاں سے نکالیں. ان کو کہیں کہ بھئی یہ غزہ سے نکلیں, یہ ویسٹ بینک سے باہر نکلیں. جو فلسطین ہے, دیکھیں سادہ سی بات ہے, بہت انسانی بات ہے, بہت صادقانہ بات ہے کہ فلسطینیوں کا وطن ہے. 1948 میں
यहूदी फलस्तीनी, ईसाई फलस्तीनी, मुसलमान फलस्तीनी, सारे फलस्तीनी अरब हैं, ये साथ रहते थे। ये मसला पैदा हुआ है कि एक गासिब रियासत को वजूद दिया बरतानिया ने, वहां से पैदा हुआ है। उस मसले की जड़ पे जाना चाहिए। मसला गजा नहीं है, फलस्तीन अथॉरिटी हमास नहीं है, मसला अमेरिका इसराइल है। हमें असल मसले से हटाकर हमें दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाता है। आप जब मेरे बच्चों पे बमबारी करेंगे तो मैं तो वहां जाऊंगा ना कहीं, फिर आप उसको कहते हैं कि अपनी ये मर्जी से जा रहे हैं। नहीं, कोई अपनी मर्जी से अपना घर नहीं छोड़ता। मैं अपना पाकिस्तान क्यों छोड़ूंगा अपनी मर्जी से, जब तक कि मुझे यहाँ पर कोई आके मेरे ऊपर जुल्म और जबर ना करे, मेरे लिए वो रास्ते तंग ना करे, तो मैं तो उसी हालत में कहीं जाऊंगा ना। तो ये बात भी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तीन बातें जो नेतन्याहू की हमने सुनी, जो मैंने कहा ये मुझे बहुत अजीब लगी, परेशान कौन लगी। एक ये कि उन्होंने कहा जो रिफॉर्म्स वहाँ होने चाहिए उसमें बच्चों का सिलेबस भी चेंज होगा, उसमें बच्चों को जूस के बारे में हम सही इंफॉर्मेशन देंगे, हम पढ़ाएंगे, हम बताएंगे कि उनको जूस के बारे में क्या बताना है। मतलब सिलेबस फलस्तीन के स्कूल के बच्चों का ये डिसाइड करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक अजीब बात की कि जी रिटर्न करें हमारे जो है हॉस्टेजेस, सोल्जर्स, डेड एंड अलाइव। हाउ डू यू रिटर्न द डेड? ये बात भी मुझे अजीब लगी इसमें, ये बताइएगा। बिल्कुल, देखिए बात ये है कि सबसे पहले जो ये कहते हैं कि हम यहूदियों के बारे में पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाते हैं यहूदियों के बारे में। हम यहूदियों के वो दुश्मन तो नहीं है मुसलमान। हमने कहीं पर, आप बताएं कि मुसलमानों की या फलस्तीनियों की तालीमात में कहीं पर ऐसा हो कि कहीं ऐसा लिखा हो कि किसी यहूदी को देख के मारना शुरू कर दो, किसी यहूदी से सिर्फ इस बुनियाद पे वो नफरत करो कि वो उसका वो मजहब जो है आपके वो मजहब से अलग है? नहीं, ये हमारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है, ये किसी नबी की तालीम में नहीं है। तो ये कौन होते हैं कि हमें ये बताने वाले? ये वो लोग हैं नेतन्याहू और ये जालिम लोग, ये अपने बच्चों को मकबूजा फलस्तीन में गासिब सेऊनी रियासत के अंदर ये अपने बच्चों को असला देके स्कूलों में ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल, यानी उनका ब्रेन वॉश करना। अच्छा, जैसे दूसरी बात भी बताएं, ये डेड और अलाइव वाली, डेड एंड अलाइव वाली बात भी बताएं कि इसका क्या मतलब है, जो दूसरी स्टेटमेंट। देखिए, ये बात ये है कि जो इस वक्त जो कैदी, जो सेहूनी फौजी कैदी जो फलस्तीनी मुदामत हमास के पास हैं, ये उनको मांग रहे हैं, ये कहते हैं कि वो दें। और हमारे जो हमास का भी जो मुतालबा है वो भी बड़ा वाज़ेह है कि जो फलस्तीनी कैदी जो इनकी कैद के अंदर बेगुनाह वहाँ पे कई सालों से जेलों के अंदर कैद हैं, वो लिस्ट तबादला हो चुकी हैं। ये अपने कैदी ले लें, वो अपने ले लें। कुछ कैदी यकीनन ऐसे होंगे सेहूनी फौजी जिनको इसराइली बमबारी के नतीजे में वो मारे जा चुके होंगे, जो हमास की कैद में थे। वो लाशें अभी इस वक्त हमास के पास होंगी, ये भी इम्कान मौजूद है। तो ये अच्छा, एक और चीज मुझे साबिर साहब इसमें एक और पॉइंट है, तबादला हो रहा है जी, एक और पॉइंट इसमें एक तो इंटरनेशनल पार्टनर्स जो है वो टेम्परेरी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स एक होगी ISF के नाम से, और इसमें मुझे आपके जो कंसर्न्स हैं वो ठीक है अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मिडिल ईस्ट का तो किरदार इसमें है। यानी ISF को देख लें या फिर जो उनकी रीबिल्डिंग अथॉरिटी जो बनाई है, जो ट्रम्प जिसको ऐड करेंगे, उसमें बहरहाल मिडिल ईस्ट का, सऊदिया का एक बड़ा मेजर रोल है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि वो सऊदिया वो किरदार अदा नहीं कर पाएगा और गजा के लोगों के हुकूक नहीं ले पाएगा इसराइल से? ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? पहला सवाल तो जनाब अली यही बनता है कि यहाँ पर ये ISF को लाने की जरूरत क्या है? ठीक है ना, सवाल तो ये होना चाहिए कि जो इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्सेस है वो यहाँ से वो दफा हो जाए, वो यहाँ से वो निकलें, ये सवाल उठना चाहिए। अब इसमें सऊदी अरब को तो ये किरदार अदा करना चाहिए, हमारे दीगर मुसलमान हुकूमतों को भी यही किरदार अदा करना चाहिए कि फलस्तीन पर कब्जे को खत्म कर। देखिए, जंग ये नहीं है फलस्तीन पर कब्जा। जिस डोनाल्ड ट्रंप ने गोलान हाइट्स के ऊपर इसराइली कब्जे को तस्लीम कर लिया है और कहा है कि ये इनका लेजिटिमेट राइट है, हाउ द लेजिटिमेट राइट? ये कैसे हो सकता है कि शाम के अंदर आप जाएं और गोलान हाइट्स पर कब्जा करें और ये डोनाल्ड ट्रंप जैसे अहमद आदमी कहे कि हम इसको लेजिटिमाइट करते हैं? फिर आपने वो लबनान के ऊपर बमबारी कर रखी है, जनूबी लबनान के अंदर 5 मकामात पे आपने इसराइली फौज का वो कब्जा कर रखा है, शीबा फार्म्स पे कब्जा कर रखा है। ये कब्जा माफिया है, जो खुद कब्जों की हिमायत करते हो वो कैसे किसी कब्जे को खत्म करेंगे? ये कब्जे की नई शक्ल है। ये जो ISF को लाना चाहते हैं, देखें ये कोई जस्टिस नहीं है। जस्टिस क्या है? फलस्तीनी क्या चाहते हैं? सवाल ये है कि यहाँ मुझे बताएं कि 20 मुकात के अंदर फलस्तीनियों की उम्मीदें कहाँ पर हैं? फलस्तीनियों की विश और उनकी ये दिल कहाँ पर है? कहीं पर नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा बिल्कुल फेल है, ये नाकाम है। जो इसकी हिमायत कर रहा है तारीख उसे भी याद रखेगी और जो इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है तारीख उसे भी याद रखेगी। और ये मुझे लगता है सर इतना प्रेशर होगा कि उन्होंने कहा होगा कि देखिए हम तो मुआहदे के लिए कह रहे थे, उन्होंने नहीं माना, लेकिन नेतन्याहू भी नहीं इसको मान रहा। अच्छा, एक और चीज इसमें डॉक्टर साहब कि जी नेतन्याहू ने, हम लोग पढ़े थे कि हेडिंग्स हर जगह कि जी अपोलोजाइज्ड टू कतर फॉर द अटैक, लेकिन जब आप उनका सुनते हैं बयान जब वो एड्रेस कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जी हमने तो हमास को मारना था, आपका कोई नेशनल मर गया, वी रिग्रेट, बट उसमें कोई
अपोलोजाइज, सॉरी, इस अटैक का आप कह देना कि ये गलती हुई, नहीं होना चाहिए था, ऐसा तो और कुछ वो तो नहीं कह चुके हैं हम दहशतगर्द को उनके नजर में दहशतगर्द जो जहां होगा मारेंगे उसको। मतलब ये कि हमास, वो चाइना में भी उन्होंने कह दिया कि हमास वहां भी है, हम तो वहां भी मारेंगे। तो इसमें क्यों दुनिया कह रही है कि जी अपोलोजाइज किया इन्होंने फॉर द कतर अटैक? ही हैजंट अपोलोजाइज। देखिए, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये सोचना कतर को है, हमारे अरब हुक्मरान भाइयों को सोचना है। मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो ग्रेटर इसराइल का इनका मंसूबा है, कतर पर हमला, उसकी पहली सीढ़ी रखी गई है। अगर इस पर अभी हम ना खड़े हुए तो ये ग्रेटर इसराइल को बनाने के लिए मजीद आगे बढ़ेंगे। सऊदी अरब के इलाके छीनेंगे, तुर्की के इलाके छीनेंगे, इराक और कुवैत के इलाके भी छीनेंगे। शाम तो इन्होंने तोड़ दिया है। लबनान के ऊपर किसी वक्त भी जंग मुसल्लत हो सकती है। कि ईरान के ऊपर जंग के बादल इन्होंने दोबारा से मंडलाना शुरू कर दिए हैं। ये पूरी दुनिया को ये अफरा तफरी का शिकार करना चाहते हैं। ये अमन के दुश्मन है, ये इंसानियत के दुश्मन है। अब ये हमारे कतरी भाइयों को सोचना चाहिए कि क्या वो इस तरह की जो यानी बेबुनियाद किस्म की माफी है, रिग्रेट, ये क्या है? ठीक है ना। तो ये अभी इज्जत का मामला है। ये ऐसा नहीं होता है कि आप आए बमबारी करें और फिर कहें कि हम रिग्रेट करते हैं। अगर कतर उस वक्त सही जवाब इस मुआहदे में अगर ऑफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई हो या टेरर की बात की गई हो, टेररिज्म, टेररिस्ट की बात की गई हो, तो वो उसी फरीक को यानी एड्रेस करके की गई है जिनके लोग मार रहे हैं। आप ये देखिए ना, बड़ी 70,000 लोग मार दिए और आप ये कह रहे हैं टेररिज्म नहीं होगा यहाँ पे। फिर सबसे बड़े तो यही दहशतगर्द हैं। 70,000 इन्होंने अभी मारे और सन 1948 से लेकर अब तक लगाए तो 10 लाख से ज्यादा लोग मार चुके हैं। इनकी तहजीब ये है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में करोड़ों लोगों को कत्ल किया, मादी की तारीख है। ठीक है ना। ये पूरे यूरोप के अंदर ये वही लोग हैं जिन्होंने 500, 600 साल, 700 साल पहले जंगें लगई और करोड़ों लोगों को कत्ल किया। और आज फलस्तीन में 1948 से अब तक यही काम कर रहे हैं। हमें दहशतगर्दी का ये लेबल लगाते हैं। सबसे बड़े दहशतगर्द तो ये खुद है। सही। तो डॉक्टर साहब, ये 2 स्टेट थ्योरी और क्लॉज तो हो गया रिजेक्ट, ऐसा क्लॉज है भी नहीं इतना क्लियर, और ऐसा नेतन्याहू ने कह दिया सिंपल मैं नहीं करूंगा और अब मैं काम बड़ा तेज करूंगा, अपना खत्म, अपना जो मकसद है बड़ी तेजी से पूरा करूंगा। ये तो उन्होंने ओपनली कह दिया। आपको क्या लगता है हमास का क्या रिएक्शन होगा इन पॉइंट्स को लेकर? देखिए, हमास ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखा हुआ है। पहले दिन से उनका मौक़िफ़ है, ना तो हम असला रखेंगे, ना ये मुज़ाहमत खत्म होगी। ये मुज़ाहमत यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक ये लेजिटिमेट राइट है फलस्तीनी अवाम का कि वो अपनी ज़मीन से इस नाजायज़ कब्जे के खात्मे के लिए मुसल्लह जदोजहद करें। नंबर 1। नंबर 2, ये जो नेतन्याहू जो बातें कर रहे हैं, ये अपने आप को ट्रंप और नेतन्याहू आज के दौर का फिरौन और नमरूद समझ रहे हैं और ये समझते हैं कि शायद इनके सामने कोई मूसा और कोई इब्राहिम जो है वो नहीं आएगा। यकीनन मूसा और इब्राहिम भी आएंगे और इन फिरौनों और इन नमरूदों का खात्मा भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये जो चाहेंगे वो होगा। जब तक एक भी दुनिया में फलस्तीनी बाकी है। एक आर्गुमेंट ये भी है ना, दूसरी तरफ का आर्गुमेंट एक ये भी है जो यहाँ पर भी आप बहुत सुन रहे होंगे कि देखें अब जो हो गया सो हो गया, बहुत कुछ हो गया, गजा के लोगों पर जुल्म सितम हो गया। अब यही मुमकिन था, यानी वहां पर रिफॉर्म्स करने के लिए और वहां पीस लाने के लिए अभी तो यही मुमकिन था। तो इस पर अमल करें, आगे बढ़े और जो आपके कंसर्न्स हैं उसको फिर एड्रेस होते जाएंगे वो आगे चलते हुए। लेकिन अगर हमने इनिशिएट ही नहीं किया इस मुआहदे से तो फिर गजा में जुल्म सितम होता रहेगा। ये एक आर्गुमेंट। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, बिल्कुल आप ये बात आपकी सही है कि ये आर्गुमेंट है। ये कौन पेश कर रहा है? ये वही लोग पेश कर रहे हैं कि जिन्होंने पहले जंग लगाई है, जिन्होंने कत्लेआम किया है, जेनोसाइड किया है, एथनिक क्लेंजिंग की है। अब वो हमें माफी की बातें कर रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हो रहा तो यही कर लो। नहीं, हम करेंगे मुआहदा। अगर मुआहदा करना है बिल्कुल आए, मुआहदा करें फलस्तीनियों की उमंगों के मुताबिक, फलस्तीनियों की ख्वाहिशात के मुताबिक। एक रेफरेंडम करें फलस्तीन के लिए। फलस्तीनी अवाम का हक वापसी किधर है? लाखों फलस्तीनी जो बेघर हैं 1948 से, जो अभी गजा से आपने बेघर किए हैं, उनका राइट ऑफ रिटर्न किधर है? उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन किधर है? आए एक मुआहदा करें, फिर हम देखेंगे कि फलस्तीनियों की विश क्या है तो मुआहदे पे दस्तखत। बिल्कुल, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की आपने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट। साबिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।